السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی دوسرے دن بھی دہلی میں مصروف۔ ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی سے ملاقات، کابینہ کے قلمدانوں اور تلنگانہ میں جلسے عام کے انعقاد پر تبادلہ خیال۔ برقی ملازمین کے لیے 1 کروڑ روپے حادثاتی بیمہ اسکیم کا آغاز۔ بینک کے ساتھ معاہدہ، پریمیم کے بغیر ملازمین اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہریش راؤ کو ہائی کورٹ سے ملی بڑی راحت، الیکشن کو چیلنج کرنے والی درخواست خارج۔ اور اوپر پلی دوہرے قتل کا معمہ حل، سابق ڈرائیور اور اس کا ساتھی ملوث نوکری سے نکال دینے اور اہانت پر جرم کرنے کا اقرار۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا دہلی کا دورہ جاری ہے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے، لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے منگل کے دن ملاقات کی۔ ریونت ریڈی نے حال ہی میں کابینہ میں توسیع سے متعلق تفصیلات فراہم کرتے ہوئے قلمدانوں کی تقسیم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور بعض وزراء کے قلمدانوں کو تبدیل کرنے سے متعلق بات چیت کی۔ دوسری طرف ریاست میں SC زمرہ بندی، طبقاتی سروے اور BC تحفظات کے سلسلے میں دوسرے بڑے جلسے عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی تاریخ کو ابھی قطعیت نہیں دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں
صدر ملکارجن کھرگے اور راہل گاندھی کو شرکت کرنے ریونت ریڈی نے گزارش کی ہے۔ دونوں قائدین نے ریونت ریڈی سے 11 سالہ مودی حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لانے کی ہدایت دی۔ ذرائع کے مطابق دہلی کے لیے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی بھی روانہ ہوئے ہیں۔ اعلیٰ قائدین سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کے بعد اتم کمار ریڈی کے دورے پر تجسس دیکھا جا رہا ہے۔ محرم کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ یوم عاشورہ کے دن بی بی کے علم کے لیے ہاتھی کے حصول، پانی، برقی، صفائی اور دیگر امور کا منگل کو حکومت کی جانب سے سیکریٹریٹ میں جائزہ لیا گیا۔ شہر کے انچارج وزیر پونم پربھاکر کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، وقف بورڈ کے صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی، مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقننہ، مختلف محکموں کے اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔ مجلس کے ارکان مقننہ کے مطالبات پر حکومت کی جانب سے تیقنات دیے گئے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو تربیت یافتہ ہاتھی کے حصول کی ہدایت دی گئی ہے۔ برقی و پانی کی سربراہی کے لیے ان محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کو درکار ضروری انتظامات کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس پیکٹس اور دیگر امور پر اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایتیں دی گئی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ محرم کے انتظامات ابھی سے شروع کر دیے جائیں۔ پہلی محرم تک تمام انتظامات مکمل ہو جانے چاہیے۔ زائرین کی سہولت کے لیے بھی انتظامات کیے جائیں گے۔ انچارج وزیر نے تیقن دیا کہ محرم کے خصوصی انتظامات کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ 51,868 برقی ملازمین کا 1 کروڑ روپے کا حادثاتی بیمہ کیا گیا ہے۔ منگل کو پرجا بھون میں برقی ملازمین کے 1 کروڑ روپے کا حادثاتی بیمہ بینکرز کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ اس کے بعد بی وکرمارکا نے کہا ہے کہ یہ ریاست کی تاریخ کا ایک عمدہ پروگرام ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ برقی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، بلا خلل برقی سربراہی کی جا رہی ہے۔ ریاست کی ترقی میں محکمہ برقی کو سرفہرست رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ برقی ملازمین دن رات کام کرتے ہیں، آفات سماوی کے وقت زندگی جوخم میں ڈال کر کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خاندان والوں کے لیے حادثاتی بیمہ اسکیم واضح کی گئی ہے۔ لائن مین سے لے کر CMD تک اس اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ برقی ملازمین کو بھروسہ اور ہمت دلانے کے لیے کسی قسم کے کنٹریبیوشن کے بغیر یہ اسکیم لائی گئی ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہماری ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے سدی پیٹ کے BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ کے الیکشن کو چیلنج کرنے والی عرضی کو خارج کر دیا ہے۔ اس کیس میں ہریش راؤ کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس کیس کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے حکمراں کانگریس پارٹی کی جانب سے BRS قائدین کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو ایک دھچکا اور عدالتی فیصلے کو BRS لیڈر کی قانونی جیت سمجھا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ BRS نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت پر اپوزیشن لیڈران کے خلاف غیر قانونی اور بے بنیاد مقدمات درج کر کے انتقامی سیاست میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کی 96 قائدین پر مشتمل کمیٹی کا اعلان کیا گیا۔ اس کمیٹی میں 27 قائدین کو PCC نائب صدور اور 69 قائدین کو جنرل سیکرٹریز کے طور پر موقع فراہم کیا گیا ہے۔ پارٹی نے 27 نائب صدور کے عہدوں میں سے 8 OBC، 5 SC، 2 ST اور 3 مسلم قائدین کو عہدے دیے ہیں۔ اسی طرح 69 جنرل سیکرٹریز کے عہدوں میں سے 26 OBC، 9 SC، 4 ST اور 8 مسلم قائدین کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن جو فہرست جاری کی گئی ہے اس میں صرف 6 مسلم قائدین کے نام ہیں۔ اقلیتی طبقے سے جن قائدین کو نائب صدور بنایا گیا ہے ان میں نواب مجاہد عالم خان، افسر یوسف زئی، MA فہیم سنگا ریڈی شامل ہیں۔ 69 جنرل سیکرٹریز میں سے 8 مسلم قائدین ہیں جن میں عبدالفہیم، محمد خواجہ فخر الدین، شمیم آغا، محمد صابر علی، محمد اسد الدین، رحمت حسین،
काबिल जिक्र हैं। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 11 साल में मोदी हुकूमत ने बेहतरीन हुक्मरानी की है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि गरीब आवाम की खिदमत करना मोदी हुकूमत का मकसद है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बास निशाने रखे हैं, इसको हासिल करने के लिए काम किए जा रहे हैं। आज मुल्क आलमी सतह पर मुआशी तौर पर चौथे मुकाम पर है। इन्होंने कहा कि मोदी तब्दीली लाएंगे, ऐसी उम्मीद थी लेकिन अब यकीन हो गया है। तेलंगाना में कई रेलवे लाइन और सड़कों की तामीर हो रही है। इन्होंने कहा कि मोदी शफाफ हुकूमत चला रहे हैं। मोदी हुकूमत आने के बाद से मुस्तहक अफराद को उनका हक मिला है। नक्सलाइट्स आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तालीम की नई पॉलिसी लेकर आए हैं। मुल्क की तरक्की के रियासती हुकूमतें अपने तौर पर फैसला करें। इससे पहले मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने IIT हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल यंग एकेडमिक्स की सालाना कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर का कहना था कि तकरीब में शिरकत उनके लिए मसरत का एक मौका है। ये कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ साइंसी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान माहिरीन तालीम की एक मुतहर्रिक कम्युनिटी को मुत्तहिद करती है। गांधी भवन में मंगल के दिन से अवामी नुमाइंदे से अवाम की मुलाकात प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। पहले दिन वक्फ बोर्ड के सदर नशीन अज़मतुल्लाह हुसैनी और एग्रोस के सदर नशीन के बाला राजू ने अवाम से मुलाकात की और उनसे नुमाइंदगियाँ हासिल की। अवाम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि अवाम को करीब करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इन्होंने कहा है कि मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को ड्राफ्टिंग के बाद मुतल्लका महकूमजात को रवाना कर दिया जाएगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासत के मुख्तलिफ कॉरपोरेशन बोर्ड्स व इदारेजात के मुताल्लिक़ मसाइल व शिकायत की समाअत के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से गांधी भवन में शुरू किए गए सिलसिले के दूसरे दिन चारशंबा 11 जून सुबह 10 बजे से 1 बजे के दौरान सदर नशीन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल दस्तियाब रहेंगे। कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ स्कीमात, ख़वातीन को सलाई मशीनों की सरबराही और दीगर खुद रोज़गार स्कीमात व क़र्ज़ों की इजराई जैसे उमूर के मसाइल व शिकायत पर अवाम रुजू हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी को बिल्डिंग खाली करने की नोटिस जारी की गई है क्योंकि हज साल 2025 का इख्तिताम अमल में आ चुका है और इमारत में साजो सामान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारों ने इस सिलसिले में हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी को 15 जून 2025 तक की मोहलत दी है। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल की कविता ने कहा है कि अवाम से लूटना हुकूमत की आदत बन चुकी है। RTC बस पास शरहों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना जागृति की तरफ से कौंसिल रुकन कविता और कारकुनों ने बस भवन का घेराव किया। कविता ने मुतालबा किया है कि इजाफी शरहों को वापस लें। पुलिस ने कविता को गिरफ्तार करके चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कविता ने कहा है कि तालिबे इल्मों और छोटे कारोबार करने वालों पर हुकूमत बोझ डाल रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से अवाम पर माहाना 300 रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। BRS पार्टी की तुलबा तंजीम BRSV के कारकुनों ने बस भवन के रूबरू धरना दिया। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। BRSV के सदर G श्रीनिवास ने कहा है कि बस पास शरहों में इजाफे से करीब 15 लाख अफराद पर बोझ पड़ेगा। हर तालिबे इल्म पर माहाना 350 रुपये का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी इजाफी शरहों को वापस लें वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। मौसम बरसात के दौरान बरक़ी मजदूदी की मुश्किलात को हल करने के लिए महकमा बरक़ी सरगर्म हो गया है। महकमा शहर में बरक़ी की गैर मजदूदी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी कर रहा है। हुक्काम का कहना है कि शहर के कई इलाकों में बरक़ी तारों को ज़ेर ज़मीन करने की भी मनसूबाबंदी पर गौर किया जा रहा है। मौसम बरसात में तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के बायस बरक़ी खंभों के गिरने और बरक़ी शॉक के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है।
इस बीच हाइड्रा की जानिब से भी शहर में मानसून के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वाज़ेह है कि हाइड्रा दौरान मानसून शहर में आबी रुकावटों को दूर करने का भी जिम्मेदार है। इदारा मुकामी वाटर बोर्ड, महकमे बरक़ी और म्यूनिसिपल हुक्काम के ताउन से काम करता है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के कमांड कंट्रोल सेंटर में फायर फाइटिंग मॉक ड्रिल का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। इस मॉक ड्रिल में महकमे आतिश फरो अमले के अरकान, मेडिकल टीम, बलदी मुलाजमीन, हाइड्रा के अरकान, NDRF और हैदराबाद सिटी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। इस ड्रिल का बुनियादी मकसद हमा मंजिला इमारतों में काम करने वाले मुलाजमीन को आग हादसा जैसे हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग देना है। साइबराबाद पुलिस ने ईद उल अजहा के दूसरे दिन अत्तापुर और मिलाडदियोपल्ली में पुरतशद्दुद झड़पों में मुलविस होने के इल्जाम में 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मजीद मुलजमीन की तलाश कर रही है जो फिलहाल मफरूर बताए गए हैं। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खातियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग समेत दीगर ने जलपल्ली में शरअंगेज़ी करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए FIR दर्ज करवाई थी। इस इलाके में शरपसंदों ने जानवरों की हड्डियां मुंतकिल करने वालों पर न सिर्फ हमला किया था बल्कि गाड़ी को आग लगा दी थी। उपल के माइनॉरिटी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज में तालीम की अहमियत के सिलसिले में एक तरगीबी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में स्कूल की प्रिंसिपल सौजन्या के अलावा अरबी टीचर्स, लेक्चरर्स के अलावा स्टाफ ने शिरकत की। मज़कूरा स्कूल में 5वीं जमात से 8वीं जमात तक तालीम दी जाती है, जबकि कॉलेज में MPC और BIPC कोर्स में मुफ्त दाखिले जारी हैं। माइनॉरिटी स्कूल नाचाराम की प्रिंसिपल सौजन्या ने लड़कियों के सरपरस्तों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी लड़कियों को जल्द से जल्द स्कूल में दाखिला करवाएं ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। हज सीज़न 2025 की कामयाब तकमील के बाद अब सऊदी अरब ने 10 जून यानी आज से उम्रा वीज़े की दोबारा इजराई शुरू कर दी है। सऊदी हुकूमत ने हज सीज़न के अख्तिताम के एक दिन बाद उम्रा वीज़ा की इजराई के दोबारा आगाज़ का ऐलान किया। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक बैनुल अक़वामी आज़मीन उम्रा का पहला ग्रुप की कल 11 जून बरोज़ चारशंबा सऊदी अरब आमद मुतवक्के है। वाज़ेह है कि साल 2025 के पहले 3 माह के दौरान 60,50,000 से ज़ायद बैनुल अक़वामी ज़ायरीन ने उम्रा अदा किया था। हैदराबाद के कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन के रूबरू घनपुर के कांग्रेसी अराकीन ने कड़ियम श्रीहरि के खिलाफ एहतजाज किया है। इन्होंने कांग्रेस हाईकमान से शिकायत की है कि कड़ियम श्रीहरि इंदिरम्मा स्कीम के तहत सिर्फ अपने हामियों को घर फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कड़ियम श्रीहरि और उनके हामियों पर भी इंदिरम्मा स्कीम के तहत घरों की फराहमी के लिए अहल उम्मीदवारों के इंतखाब में बेकायदगियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि कड़ियम श्रीहरि सिर्फ BRS पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अपने हामियों को तरजीह दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना के नलगोंडा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन का एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जाता है कि तकनीकी खराबी के बायस जन्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन अचानक रुक गई। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मामले की जांच की, जिसमें इंजन फेल होने की तस्दीक हुई। ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हुक्काम ने इस वाक़े के बाद सुकून की सांस ली, वरना एक बड़ा हादसे का अंदेशा था। इस वाक़े के बाद नया इंजन लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई थीं। रेलवे ज़राए के मुताबिक इस रूट पर रेल खिदमात की बहाली में चंद घंटे लग सकते हैं। ज़िले निज़ामाबाद अंदलोई मंडल सरनापल्ली विलेज में गरीब मुस्लिम ख़ानदान पर बजरंग दल के शरपसंद अनासिर की जानिब से क़ातिलाना हमला किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस कायदीन ने मुतासरा ख़ानदान के हमरा पुलिस कमिश्नर श्री साई चैतन्या से मुलाकात की। मजलिसी कायदीन ने इस मुलाकात के ज़रिए पुलिस कमिश्नर पर निज़ामाबाद ज़िले के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरपसंद अनासिर और विलेज डेवलपमेंट कमेटी के जिम्मेदारान और गरीब मुस्लिम ख़ानदान पर क़ातिलाना हमला करने वाले बजरंग दल के अराकीन पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
इस सिलसिले में मजलिस के मुकामी कायदीन पुलिस कमिश्नर को तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की है। ऊपरपल्ली राजेंद्र नगर के एक अपार्टमेंट में एक ज़ईफुल उमर जोड़े के 5 जून को पेश आए दोहरे कत्ल केस के मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कत्ल वाक़े से इस इलाके में सनसनी फैल गई थी। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन साइबराबाद पुलिस CH श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद शकील सलमान साकिन फलकनुमा मुतवत्तिन मौजू सुल्तानपुर ज़िले मेदक मख्तूल रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद के यहाँ ड्राइवर था। ड्राइवर के काम से अदम मुतमईन शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद ने इसको बर्खास्त कर दिया और इसकी बरसरेआम अहानत की थी। मुलजिम नंबर 1 रशीद कॉलोनी मेदक के मुतवत्तिन मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद मुजीबुद्दीन को अपने साथ ये कहकर मिला लिया कि उन्हें अपने साबिक काम वालों से रकमी बकाया वसूल तलब है। ये दोनों 4 जून को रेड हिल्स में वाक़ शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद के घर गए, जहां ये मालूम हुआ कि वो ऊपरपल्ली राजेंद्र नगर में वाक़ अपने फ्लैट में चंद दिन कबल मुंतकिल हो गए हैं। मुलजिम नंबर 1 और 2 दूसरे दिन ऊपरपल्ली राजेंद्र नगर के उस फ्लैट पर पहुंचे जहां वो अपनी अहलिया रिटायर्ड लेक्चरर रिजवाना के साथ मुकीम थे। मुलजिम नंबर 1 बुर्क़े में था और मुलजिम नंबर 2 मास्क पहना हुआ था। मख्तूल के फ्लैट में दाखिल होकर मुलजिम नंबर 1 ने अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। उसने शेख अब्दुल्ला अब्दुल हमीद को देखते ही उन्हें चाकू घोंप दिया। बीच बचाव के लिए उनकी अहलिया दरमियान में आई तो उन्हें भी चाकू घोंप दिया गया। मुलजिम नंबर 1 ने मख्तूल के पैकेट में मौजूद 600 रुपये भी निकाल लिए और फरार हो गए। शदीद ज़ख्मी ये दोनों ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। पुलिस की SOT, CCS और राजेंद्र नगर डिवीज़न की पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस अविनाश मोहंती ने पुलिस की चुस्त कार्रवाई की सताइश की है। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने ताश के पत्तों का गेम पोखर खेलने के इल्ज़ाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन को C ब्लॉक कॉलोनी वाक़ कंचनबाग पुलिस हदूद से गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि पोखर भी ताश के पत्तों का ही एक गेम है जिसे 2 कार्ड से खेला जाता है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन को कंचनबाग पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि वो उनसे मजीद पूछताछ कर सके। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद।
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दूसरे दिन भी दिल्ली में मसरूफ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात, काबीना के कलमदानों और तेलंगाना में जलसे आम के इनेकाद पर तबादले ख्याल। बर्क़ी मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ रुपए हादसाती बीमा स्कीम का आगाज, बैंक के साथ मुआहिदा, प्रीमियम के बगैर मुलाजमीन स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। हरीश राव को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, इलेक्शन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त खारिज। और ऊपरपल्ली दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल, साबिक ड्राइवर और इसका साथी मुलविस नौकरी से निकाल देने और अहानत पर जुर्म करने का इकरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।